हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोवाज। मैं आपकी एजुकेटर श्रुति मैम। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सीरीज। सो अप टू नाउ what we have discussed, just revise all. So firstly we have seen the introduction of photosynthesis, then we have discussed the early experiments about the photosynthesis. After that we have moved to the site of photosynthesis, which is the thylakoid और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, विच इज़ क्लोरोप्लास्ट. लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? लाइट रिएक्शन होती है इन द ग्राना एंड द डार्क रिएक्शन ऑकर्स इन द स्ट्रोमा, ठीक है. देन वी हैव सीन द पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस. सो वी हैव लर्न अबाउट द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, then chlorophyll C and chlorophyll D, and we have also discussed some accessory pigments. Which are them? They are carotenoids, xanthophyll. So we are moving further beyond this, ठीक है. हमने कैरोटीन तक पढ़ा था एसेसरी पिगमेंट्स में. अब हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं. सो सी, अभी हम पढ़ेंगे अबाउट दी xanthophyll, ठीक है. ये भी एक टाइप का एसेसरी पिगमेंट है लाइक दी कैरोटीन्स. सो लेट्स मूव फर्दर. सो इन xanthophyll, so they are, firstly let's see the color of xanthophyll. They are yellow colored carotenoids. So they are yellow in color, also called as xanthols or carotenoids. So इनका अदर नेम क्या है? xanthophyll से आप याद रख सकते हैं xanthols एंड carotenols, ठीक है, because this name is derived from its structure, hence it is carotenol, ठीक है. They contain oxygen also along with carbon and hydrogen and have general formula C40H56 and O2. So this is the general formula of the xanthophylls or xanthols. Then so lutein is what? Is a widely distributed xanthophyll which is responsible for yellow color in autumn foliage. How many of you have seen the autumn foliage? So search this on Google about the autumn foliage. You will see there are yellow leaves fall around the ground, over the ground, ठीक है. So जो yellowing of leaf है in the autumn leaves, so autumn foliage, ये किस वजह से होती है? This is because of the pigment known as lutein, जो कि एक widely distributed xanthophyll है. Then fucoxanthin. So it is another important xanthophyll present in the Phaeophyceae. Phaeophyceae क्या है? Phaeophyceae is the brown algae. So Phaeophyceae is brown algae. So what is the red algae known as? It is the Rhodophyceae. Just for information, we will take this in another lecture when we are dealing with the algae portion, ठीक है. Now phycobilins. So these pigments are mainly found in the blue-green algae. So blue-green algae is what? It is a cyanobacteria. And red algae, as we have seen, red algae means Rhodophyceae. So phycobilins, ये जो phycobilin होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? ये blue-green algae मतलब साइनोबैक्टीरिया में, एंड रेड अलगी मतलब रोडोफाइसी. सो इस ग्रुप में प्रेजेंट होती है फाइकोबिलिन पिगमेंट. सो दिस पिगमेंट्स हैव ओपन टेट्रापायरोलिक स्ट्रक्चर एंड डू नॉट बियर मैग्नीशियम एंड फाइटोल चेन. अभी हमने जो भी क्लोरोफिल देखे थे उसमें मैग्नीशियम एज अ सेंट्रल एटम था, ठीक है, एंड उसमें फाइटोल की टेल प्रेजेंट थी. और इसमें ये स्ट्रक्चर
नहीं प्रेजेंट होता है इन दी फाइकोबिलिन्स. ब्लू ग्रीन algae have higher quantity of phycocyanin and red algae have more phycoerythrin. So red algae में क्या प्रेजेंट होता है? phycoerythrin, and in blue green algae there is phycocyanin. So these are the pigments. For learning this, what you can do, just make a table. Firstly write the chlorophyll A, chlorophyll B, C, D, then carotenoids, xanthophyll, एक्सेट्रा. ठीक है, यहाँ पे उनकी पिगमेंट जो प्रेजेंट है उनमें वो पिगमेंट लिखना, यहाँ पे उनका फॉर्मूला लिखना. ठीक है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मीन्स ऑर्गेनिज्म और इन विच दे फाउंड. मीन्स देखिए कौन से पिगमेंट सिर्फ हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, कौन से पर्टिकुलर टाइप लाइक अ फाइकोसाइनिन ये प्रेजेंट होता है ब्लू ग्रीन algae, दैट इज द साइनोबैक्टीरिया में. देन फाइकोएरिथ्रिन होता है रोडोपाइसी ग्रुप में. सो ऐसे वो जिस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और जिस प्लांट में प्रेजेंट है, मीन्स लाइक फियोपाइसी एक्सेट्रा लाइकवाइज. सो यहाँ पे उनका एग्जाम्पल लिखना है आपको, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे पिगमेंट लिखनी है, कौन सी पिगमेंट मतलब कौन सा कलर शो होता है. लाइक अ क्लोरोफिल ए कौन सा कलर शो करता है, बी कौन सा कलर शो करता है. ऐसे आपको एक चार्ट बनाना है. ये आपका होमवर्क है आज के लिए, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे बहुत क्वेश्चन बने हैं नीट में. सो आई होप यू विल डू इट. लेट्स erase this. ठीक है. So these water soluble pigments are thought to be associated with this small granule attached with lamellae. Like carotenoids, phycobilins are accessory pigments, that is they absorb light and transfer it to chlorophyll A. So chlorophyll A particularly क्या है? What is chlorophyll A? Chlorophyll A is the reaction center. मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस होती है उसका रिएक्शन सेंटर मीन्स बॉस कौन है? बॉस इज द क्लोरोफिल ए. एंड ये जो एसेसरी पिगमेंट्स है लाइक कैरोटेनॉइड्स, xanthophyll, देन क्लोरोफिल, अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये क्या है? ये नौकर इसके बॉस के, मीन्स दे आर एसेसरी. एंड द मेन पिगमेंट इज व्हाट? मेन पिगमेंट इज chlorophyll A. So it is reaction center and these are the accessory pigment, means they help to absorb light and then they transfer to the chlorophyll A. Just for example, if you are working in an office, you are an employee. So सबसे पहले जो भी लेटर आते हैं ऑफिस में या फिर कोई भी काम होता है, सो बॉस ए ऑफिस में अवेलेबल रहता है. लेकिन जो छोटे मोटे काम है लाइक फॉर एग्जांपल एखादा लेटर आया, ठीक है, देन सबसे पहले, और जस्ट मेक इट सिंपल, इफ दिस बॉस वांट टू हायर समवन फॉर अ जॉब पोस्ट लाइक दी for manager post. If he want to hire someone for the manager post, then the HR will get the resume according to job they posted. Then HR से जो भी resume फाइनलाइज होंगे वही सिर्फ बॉस के पास जाएंगे. बॉस क्या है? बॉस इज द रिएक्शन सेंटर हियर, मीन्स ही इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर. जो भी सॉर्टेड मटेरियल है सिर्फ वही बॉस के पास जाएगा. ठीक है. लाइकवाइज द क्लोरोफिल ए के पास ये जो एनर्जी कैरोटेनॉइड्स, xanthophyll, फाइकोबिलिन्स लाइक एसेसरी पिगमेंट है वो पहले ट्रैप करेंगे एनर्जी को एंड देन दे विल सेंड दैट एनर्जी
to the, or we can say the, in biology we say, we don't use the word send, we use the energy will be transferred to the reaction center by the accessory pigments. So bacteria possess two types of related pigments, namely bacteriochlorophyll, having this formula actually, this is the formula of the bacteriochlorophyll, and bacterioviridin. So bacteria possess two types of related pigments. बैक्टीरिया में कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया में बैक्टीरियोक्लोरोफिल होता है. लाइकवाइज प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड बैक्टीरिया में बैक्टीरियोक्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड बैक्टीरियोविरिडिन. ये दो पिगमेंट्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है. सो ओके, we will take up to that in this lecture. So how much remaining? Okay, we will discuss. So absorption and action spectra. So अभी जो ये पिगमेंट है उनका एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा हम देखने जा रहे हैं. आपको इन टर्म्स का मीनिंग मैं जल्दी समझाऊंगी. सो सी द कर्व रिप्रेजेंटिंग the light absorbed at each wavelength by a pigment is called its absorption spectrum. So absorption spectrum मतलब क्या होता है? See, the curve representing the light absorbed at each wavelength by a pigment. So जो pigment होती है वो at a particular wavelength पे light trap करती है. मतलब see, for chlorophyll we can say it absorbs at 700 nanometer. अगर हमने ऐसे बोला तो ये सिर्फ यही वेवलेंथ पे जो एनर्जी है वो ट्रैप करेंगी. हिंदी वी आर टॉकिंग अबाउट द विबजॉर सेक्शन, द लाइट विच वी कैन सी बाय आवर आइज. सो कहने का मतलब ये है the curve representing the light absorbed at each wavelength by pigment is known as its absorption spectrum. मतलब absorption मतलब क्या होता है? अगर स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज मैंने पानी में रख दिया, दिस इज वाटर, तो ये स्पॉन्ज कुछ देर बाद पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाएगा. पानी को इसने क्या किया? इसने पानी को एब्जॉर्ब किया. सो लाइकवाइज दिस एब्जॉर्प्शन मीन्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट. सो जो पिगमेंट्स होती है वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, नॉट एट एनी रैंडम वेवलेंथ. Then curve showing rate of photosynthesis at different wavelength of light is called action spectrum. So curve showing rate of photosynthesis. तो अभी जो कर्व रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करेगी एट डिफरेंट वेवलेंथ उसको कहेंगे हम एक्शन स्पेक्ट्रम. मतलब अभी हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं, मतलब किस रेट पे फोटोसिंथेसिस कैसी होगी ये हमें किससे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा बाय द एक्शन स्पेक्ट्रम. एंड कर्व रिप्रेजेंटिंग द लाइट एब्जॉर्ब मीन्स जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो हमें पता चलेगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से. बहुत ईजी है. सी एब्जॉर्ब मीन्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, देन एक्शन स्पेक्ट्रम मीन्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो सी एब्जॉर्ब लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट. सो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल ए एंड बी का एंड कैरोटेनॉइड्स का. सो ये जो पीक है यहाँ पे क्लोरोफिल बी सबसे ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है इस वेवलेंथ पे. यहाँ पे वेवलेंथ होंगी एंड दिस इज द एब्जॉर्ब लाइट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स. यहाँ पे सबसे ज़्यादा ए क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल. मतलब देखो अगर आपको ग्राफ है और बोला कि नेम दी पिगमेंट्स
अकॉर्डिंग टू देयर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो फॉर एग्जांपल ऐसे आया, और ये जो नाम है ये यहाँ पे नहीं दिए होंगे। सो हमें इसको डिकोड करना है। अभी हम कैसे जानेंगे कौन सा स्पेक्ट्रम कौन से लाइट का है? सो लेट्स डिनोट द क्लोरोफिल ए बाई येलो। सो जो सबसे पहले आता है जो सबसे पहले आता है, और देखिए ये वेवलेंथ, हाँ ये कौन है? जो सबसे पहले आया और सबसे आखिर में गया, ये है बॉस। क्योंकि बॉस कौन होता है? बॉस का नेम क्या होगा इन फोटोसिंथेसिस? इट इज अ क्लोरोफिल ए। आई थिंक अभी आप सबको समझ रहा होगा ये। सो दिस बॉस इज द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ठीक है, जो सबसे पहले आएगा और सबसे आखिर में जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉस की खुद की कंपनी है ये। मीन्स वो घर पे भी थोड़ा पर काम करेगा और ऑफिस में भी। जो एम्प्लॉय रहते हैं वो क्या करते हैं? उनके पास भी काम रहता है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ पर्टिकुलर टाइम तक के करेंगे। सी अभी क्लोरोफिल बी की बात करें अपन, सॉरी सी, जो बाद में लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर, लेट्स टेक वाइट। क्लोरोफिल ए के बाद में आएगा और इट विल शो द हाईएस्ट पीक इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पीक किसकी है? सबसे हाईएस्ट पीक है क्लोरोफिल बी की। सो ये है क्लोरोफिल बी, एंड ए क्लोरोफिल ए के बाद में आएगा और क्लोरोफिल ए के पहले जाएगा क्योंकि ये एम्प्लॉय है। देन द कैरोटेनॉइड्स, जो पास में आपको दो पीक मिलेंगी वो होंगी कैरोटेनॉइड्स की। उनकी पीक यहाँ पे आजू बाजू में ही मिलेंगी, नॉट लाइक दिस क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। सो अभी आपको ये समझा होगा, आई होप इट इज़ क्लियर। एंड सी, ये जो डायग्राम है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। एक क्वेश्चन नीट में आता ही है इससे। Now see the action spectra of the photosynthesis. So rate of photosynthesis is measured by the oxygen released. Photosynthesis का रेट हम कैसे निकालते हैं? On the basis of oxygen release. So यहाँ पे देखिए, ये जो ग्राफ है ये दो जगह पे हाईएस्ट पीक दिखाता है, ठीक है। हमने इससे पहले कुछ तो भी पढ़ा था थेरीज में, याद करिए सब। हैव वी लर्न अबाउट द एंजलमैन एक्सपेरिमेंट, व्हाट ही हैव डन? जस्ट रिकॉल। सो उसने बताया था जो ऑक्सीजन इवोल्यूशन होता है वो हमें दो जगह पे ज़्यादा मिलता है। कौन सी दो जगह? इन द रेड एंड ब्लू लाइट रीजन। ये दो जगह हमें ऑक्सीजन इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए बैक्टीरिया वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए थे। आपको पता है, रिकॉल हो रहा है, जो प्रिज्म उसने यूज़ किया था लाइट को विबज्योर सेक्शन में डिवाइड करने के लिए, उसके वजह से लाइट का
बाइफर्केशन हुआ था इन द 7 कलर. देन ही यूज अ algae here, क्लैडोफोरा. एंड यहाँ पे जो ऑक्सीजन इवोल्यूशन ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया है वो 2 रीजन पे ज़्यादा एक्यूमुलेट हुए थे, रेड एंड ब्लू रीजन. सो इससे हमें पता चला था कि ये दोनों रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है. सो दिस ग्राफ शोज द सेम कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजर्ड बाय द ऑक्सीजन रिलीज्ड. एंड यहाँ पे 2 जगह पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है. So for chlorophyll molecule, chlorophyll A molecule जो सबसे पहले आता है और सबसे आखिर में जाता है, that is the chlorophyll A molecule. So इसके लिए ये जो peak है of the action spectra and the absorption spectra, ये दोनों देखिए आप, ठीक है. So absorption spectrum is studied with the help of spectrophotometer. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? ये इस प्रकार का एक डब्बा होता है, इन द सिंपलर वर्ड. यहाँ पे एक ओपनिंग होता है, मतलब ठीक है, एक ओपनिंग होता है. यहाँ पे हम क्यूवेट रख सकते हैं. क्यूवेट क्या है? एक रेक्टेंगुलर ग्लास की बनी हुई एक क्यूवेट रहती. ये तीनों साइड से पैक रहती, लेकिन वन साइड इट इज़ ओपन. ऐसी क्यूवेट रहती. देन इसमें हम पोर करते हैं, एक लिक्विड हमने इसमें पोर किया, ठीक है. एक क्यूवेट रखी हमने इधर इसमें. एंड वन मोर थिंग, इसकी जो ट्रांसपेरेंट साइड है वो आनी चाहिए इस बीम के साइड से. मतलब जो एक साइड होती है इसकी, 4 साइड क्यूवेट की, तो 2 साइड इसमें से रफ होती है थोड़ी सी, एंड 2 साइड दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट. व्हेन द लाइट फॉल्स, सो दिस इज द बीम ऑफ लाइट. दिस इज द बीम ऑफ लाइट. व्हेन लाइट फॉल ऑन दिस, सो हियर इज द लाइट डिटेक्टर. अगर ये जितनी ज़्यादा बेंड होंगी लाइट, उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा इसका एब्जॉर्प्शन क्या है. मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्जॉर्प्शन शोन बाय द सैंपल मॉलिक्यूल. सो इसको हम ढक्कन लगाते, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑन करते, थोड़ा सा उसमें क्या बोलते रीडिंग का मतलब थोड़ा ये रहता, तो वो प्रॉपर करते. पहले उससे पहले मतलब जो स्टैंडर्ड होता है उसका लेते हैं हम, बाद में जो सैंपल होता है उसका एब्जॉर्प्शन लेते हैं. सो दिस इज द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. So absorption spectrum is studied with the help of spectrophotometer. The absorption spectra of chlorophyll A and chlorophyll B indicate that these pigments mainly absorb blue and red lights. So ये जो पिगमेंट होती है वो मेनली ब्लू एंड रेड लाइट एब्जॉर्ब करती है. इससे ये किसकी वजह से हमें पता चला? अब इस एक्सपेरिमेंट से 430 नैनोमीटर 662 नैनोमीटर ऑफ क्लोरोफिल फॉर क्लोरोफिल ए. तो ये जो वैल्यूज़ है हमने ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के इससे निकाली है, ठीक है. मतलब इन वैल्यू का मीनिंग क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो ये वैल्यू बताती है कि क्लोरोफिल ए विल शो अ पीक एट द 430 नैनोमीटर एंड देन 662 नैनोमीटर फॉर क्लोरोफिल ए. देन क्लोरोफिल बी विल शो अ पीक एट 644 नैनोमीटर एंड 655 नैनोमीटर, ठीक है. इसके बाद में आएंगा ये, और सबसे पहले मतलब इसके पहले जाएगा. Action spectrum shows that maximum photosynthesis takes place in the blue and red region of spectrum. The first action of spectrum of photosynthesis was studied by Engelmann. So
आ गया जिन्होंने सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था इन दी हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे अच्छे एक्सपेरिमेंट में से एक, यूजिंग द algae known as Spirogyra और Cladophora एंड ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया। सो ये जो साइंटिस्ट है इनको आप याद रखिए, बिकॉज दे आर न्यूटन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। दिस साइंटिस्ट इज वेरी important। T.W. एंजलमैन। एंड कब किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट? 1882 में। तो सोचिए कितने होशियार होंगे। जब ज़्यादा चीज़ें विकसित नहीं थी तब इन्होंने कैसी कैसी चीज़ों का पता लगाया। नाउ mechanism of photosynthesis. I think we should take this in our another lecture, because after that we will conclude this chapter in our next 4 to 5 lectures. I am not taking one lecture long about 2 to 3 hours. I will break down all the lectures into small bit size sample, so that they will be easy to digest by all of you. So I hope all of this is clear to now to you all. If you have liked this lecture, then please like, share and subscribe the channel and follow for more this content. Thank you so much.